सारे आलम में मोहब्बत की घटा छाई है। चंद शेर आपकी मोहब्बतों के हवाले की, बड़ी मोहब्बतों के साथ आपने इस्तकबाल किया, सुना, बहुत शुक्रिया आपका। एक मतलब चंद शेर नाशरी करना चाहता हूँ। अहले मक्का की हमसे बड़े हैं, इनकी मोहब्बतें अगर शामिल हाल हो गई तो सफर आसान हो सकता है। इनकी मोहब्बतों के हवाले से सहले मुमताना भी छोटी सी बहन है, एक नात का एक मतला और चंद शेर आप सबके हवाले है। अगर कभी ये चाहे तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर कभी कभी ये चाहा तो मैं एक मतला पढ़ता हूँ के हवाले से, देखिएगा। चाहते हो कि खुल्द में हो मकाम। शेर मैं पढ़ता हूँ, सुनना आपको है, मैं पढ़ के बताऊंगा, आपको सुन के बताना है। चाहते हो कि खुल्द में हो मकाम, चाहते हो कि खुल्द खुशी जरूरी है, जरूरी है मुस्तफा, खुशी जरूरी है, खुशी जरूरी है। मरहबा। मैं चचा जान का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं और लोगों का भी शुक्रगुजार हो सकता हूँ, लेकिन अगर यही हौसला और लोगों का हो जाए तो एक शेर मैं हाजिर करता हूँ। तमाम मोतबर शख्सियत जलवा का है, जावेद भाई देखिए, बहुत कीमती, बहुत अच्छा शेर। मुस्तफा की खुशी जरूरी है, फिर भी करते रहो दुरूदों का। जरा एक बार कह रहे या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही ताकत है तो कोई शिकायत नहीं, इससे ज्यादा अगर रब ने नवाजा है तो एक बार जरा बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। फिर भी करते रहो दुरूदों का, फिर भी करते रहो दुरूदों का, कि फिर
اللہ اکبر ماشاء اللہ یا رسول اللہ واہ ماشاء اللہ کرتے رہو ایک شعر بہت قیمتی بہت عمدہ بہت اچھا شعر بھی ہے اور ایک پیغام بھی ہے اور امتیاز دیکھیے آپ کو کیسے کرنا ہے اپنے پیغام نیکی پرکھے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے بس میں جو بتاؤں گا وہ کرنا ہے اپنے پیغام نیکی پرکھے کے لیے اگر اجازت ہے تو میں اس کو دوبارہ پڑھوں اجازت ہے حضرت محمد سے کہنے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں شعر حاضر کرتا ہوں دیکھیے گا اہل نمبر کے حوالے سے ان کی سب کی محبتیں شامل حال ہیں اور میں حاضر کرتا ہوں دیکھیں اپنے پیغام نیکی پرکھے کے لیے یہاں سے وہاں تک اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے شعر مکمل ہو جائے گا اور نعرے حیدری لگائے گا تو مجھے یقین ہے کہ ہمارا آنا پڑھنا سب قبول اللہ کی بارگاہ میں اپنے پیغام نیکی پرکھے کے لیے کہ اپنے تو ہی شعر محبت سے سنیں کہ کام حضرت جس پہ اعلی حضرت تھے کام حضرت جس پہ اعلی حضرت تھے سن کے بتانا ہے شعر آپ کو کام حضرت جس پہ اعلی حضرت تھے
وہی ضروری ہے، ضروری ہے راہ چلنا، وہی ضروری ہے۔ آخری شعر آپ سب کی محبت کے حوالے آپ کے حوالے ہے، اور اس امید کے ساتھ جو مضمون پیش کیا گیا ہے بہت کم آپ نے سنا ہوگا، جو مفہوم استعمال ہوا ہے وہ بہت کم آپ نے سنا ہوگا۔ اہل ممبر کے حوالے سے سنیے گا کہ جس پہ مولا علی کرم کر دے، آخری شعر پسیمی محبتوں کے ساتھ سن لیں۔ جس پہ مولا علی کرم کر دے، جس پہ مولا علی کرم کر دے، کہ جس پہ مولا ولی ضروری ہے، اس کا ہونا ولی ضروری ہے، رونق زندگی ضروری ہے، یعنی عشق نبی ضروری ہے۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل الزمان على الزمان كما فضل مكانا على المكان وإنسانا على الإنسان لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اس وقت اللہ کا فضل بھی ہمارے ساتھ ہے اور رسول کا کرم بھی ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھ کر اس رخ روشن کی ضیاء آج کی رات، ماہ خجلت سے تہے ابر چھپا آج کی رات، ساری راتوں سے ہے رتبہ میں سوا آج کی رات، ہوگی مقبول جو مانگے کہ دعا آج کی رات۔ چاندنی پھیلی ہے انجم میں فلک کا روشن، چاندنی پھیلی ہے انجم میں فلک پر روشن، اوڑھ کر نور کی آئی ہے ردا آج کی رات۔ روزے کی ساتھ پلائی تھی جو پیمانے میں، روزے کی ساتھ پلائی تھی جو پیمانے میں، ساتھیا پھر وہی میں ہم کو پلا آج کی رات۔ روزے میں ساتھ پلائی تھی جو پیمانے میں، ساتھیا پھر وہی میں ہم کو پلا آج کی رات۔ عشق و محبت کی دہلیز پر جب جبین عقیدت کو خم کیا،
تو عشق کے آئینے نے ایک اور آئینہ دکھایا اور اس آئینے سے آواز گونجی کل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ عظمت قرآن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو محبت کی وادیوں سے کسی وارث علم گناہ کے در کے فیض یافتہ نے جو شراب عشق پی تو مستی میں کچھ یوں گنگنایا کس کام کی وہ آہ کی جس میں اثر نہ ہو مر جائیں ہم یہاں انہیں مطلق خبر نہ ہو عاشق کی ہے وہ آہ جو دل کھول کر کرے ممکن نہیں کہ عرش بھی زیر و زبر نہ ہو محبت کی وادیاں بڑی طویل ہو سکتی ہیں مگر قوم کا حساس ترین مسئلہ لے کر کے محمد احمد وارثی اس وقت حالات حاضرہ کے تناظر میں آپ کو قمریوں کے ترانے نہیں سنا سکتا آپ کے ذہن کی وادیوں کو آپ کی کیفیت کے مطابق باتیں نہیں بتا سکتا حالات کی تیز و تند آندھیوں میں گھرا ہوا ایک وجود ناکارہ آپ سے کچھ سوال کرے گا اسی کا جواب لے کر کے اپنی گفتگو کو تام کرے گا گفتگو یہاں سے شروع کرتا ہوں ڈاکٹر منصور صاحب تشریف فرما ہے میری منتہائے گزارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں زمانہ کرب کے بستر پہ پھر پہلو بدلتا ہے کوئی دستے کرم پھر زخم خوردہ دل پہ رکھ دیتا نگاہیں منتظر پتھرا گئی ہیں اے شب وعدہ کوئی کشتی کمر سے کھینچ کر ساحل پہ رکھ دیتا اگر میں واقف راہ عمل ہوتا تو اے رحمت میں ٹھوکر کھانے سے پہلے قدم منزل پہ رکھ دیتا آخر کیا وجہ ہے کہ وہ خوبصورت چہرے کہاں غائب ہو گئے وہ قیادتیں کہاں روپوش ہو گئی ہیں کہ جب ہم ظلم و ستم کی آندھیوں میں پستے تھے تو مشرق کی جانب سے کہیں مجاہد ملت کا چہرہ دکھتا تھا مغرب کی جانب سے کہیں حضور محدث اعظم ہند ہماری قیادت کرتے نظر آتے تھے شمال ناروں میں گم ہے سبحان اللہ اللہ مولا کی محبت کو آپ کے سینے میں برقرار رکھے مگر ان 70 سالوں میں آپ نے کبھی خود سے سوال کیا جس قوم کے پاس علامہ فضل حق خیر آبادی جیسی ذات تھی جس قوم کے پاس مفتی صدر الدین آزودہ جیسی ذات تھی جس قوم کا اثاثہ شیر میسور کی صورت میں ٹیپو سلطان کی صورت میں موجود تھا جس قوم کے پاس حیدر علی کی ذات تھی جو قوم علامہ عبدالحق خیر آبادی کی کا اثاثہ رکھتی تھی جس قوم کے پاس وقت کا مفتی اعظم ہند تھا جس قوم کے پاس وقت کا مفسر اعظم ہند تھا ظلم و تشدد کی انہی آندھیوں کے بیچ میں آج تو آپ کے پاس تعداد بھی ہے آج آپ کے پاس افراد بھی ہیں آج آپ کے پاس جماعت بھی ہے آج آپ کے پاس ازدحام بھی ہے آج آپ کے پاس مجمع بھی ہے پھر کیا بات ہے کہ آپ کمزور کیوں ہیں آپ ناتباہ کیوں ہیں آپ پریشانی میں کیوں ہیں آپ حالات میں گلدستہ کیوں ہیں آخر کیا وجہ ہے تعداد ہونے کے باوجود بھی آج آپ کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا آپ کے زخم پر کوئی مرہم بنانے والا نظر نہیں آتا چھوڑ دیجئے کھوکھلے نعروں کو چھوڑ دیجئے ایسی بے باک گفتگو کو چھوڑ دیجئے اس تیزی گفتگو کو آئیے میدان عمل میں ہم اپنی جماعت میں ایک ایسی ذات کو لاتے ہیں جس ذات نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی جب حق کا پرچم بلند کرنا ہوا ساری دنیا ایک تھی لیکن حق کا پرچم بلند کرنا
की सरजमीन पर पहुंचे और अपना जूता मुबारक, अपनी दालाने मुबारक उतारे, जो उतारना ही चाहते थे। इतने में इमाम अहमद रजा को देख लिया, फिर आपने उस नालैन को पहन लिया। इमाम अहमद रजा ने पूछा, हुजूर नालैन क्यों पहन रहे हैं? उतार भी दिए। फरमाया नहीं उतारूंगा, अभी उतारूंगा तो तुम इसको अपने सर पर रख लोगे, अभी उतारूंगा तो इसको सर पर रख लोगे। ये था मकाम, कहा इसलिए नहीं उतार रहा हूं कि तुम अपने सर पे इसको रख लोगे। मैं जानता हूं अगर तुम आले रसूल का एहतराम कर रहे हो तो मैं आशिक रसूल का एहतराम कर रहा हूं, मैं नबी के आशिक का एहतराम कर रहा हूं। जब इस तरह से तवाज़ुन बरकरार होगा तब हम दुनिया के सारी कौम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म शहजादे मखदूम अशरफ, शहजादे मखदूम सिन्हा, शहजादे मखदूम सिन्हा, हुजूर अमीर शरीयत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप मोहब्बतों के साथ जो है हजरत के चेहरे की ज़ियारत फरमाया। आप देख रहे हैं कि मिंबरे दूर की अदबी मज़हबी है पर गुले गुलज़ार अशरफियत पे तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयदी आकाई व मौलाई हुजूर सैयद राशिद मक्की मियां साहब की बिलाद की चौथा मुक़द्दसा की यहाँ बदावत हो चुकी है। इब्न रूह पर तशरीफ़ फरमा है, आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत फरमाए। थोड़ी देर पर मौला हजरत के ख़िलाफ़ आयात को समाअत करेंगे। ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुश नसीबी है कि इस वक्त पूरी दुनिया में अपनी खिलाफत का डंका बजाने वाली ज़ात, दिलों पर हुकूमत करने वाली ज़ात, मुफक्किर इस्लाम शहजादे मखदूम सिन्हा, खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब आज़म यूरोप एशिया, हज़रतुल अल्लामा मिफ़्रद मौलाना शाह सय्यद शरीफ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब हम नारे बहुत लगवा लिए, अब अमल की दुनिया में आने की जरूरत है। लोगों को पिसते हुए बहुत देख लिए, अब वक्त की आंधी के आगे सीना सफर होने की जरूरत है। मसलहत की चादर आपने बहुत ओढ़ ली है, अब हालात के तहत आपको आगे आने की जरूरत है, अपना हक लेने की जरूरत है। आप कमजोर नहीं हैं, आप दस्तूर के मुताबिक, कानून के मुताबिक खड़े हो और अपने हक की बात करें। इंशाअल्लाह मदीने वाले की नुसरत और हिमायत आपके साथ होगी, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जो कदम उठाया था अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि जब वो चले थे तो उनकी ज़बान से यही नारा था, उन्हें जाना, उन्हें जाना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, बादो दिल होश हो गया, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रहा, सारा तो सामान गया, जब उनकी ज़बान को या मुसलमान गया। नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। पैगाम लेके जाइए, नाली नापदान के झगड़ों से बाहर आइए, क्या बात है, मेड़ और खेत के झगड़ों से अपने आप को आजाद कीजिए। बेशक हसद और जलन की चादर आपने बहुत बिछा ली, क्या इसको बात है। समेट करके पूरी कौम के दर्द को महसूस कीजिए। आप खुद साथ में आइए, अपने इम्मा की इज्जत कीजिए, अपने कायदीन की इज्जत कीजिए। कोई कायद खुद मजबूत नहीं होता, जब आवाम उसके साथ खड़ी होती है तब वो मजबूत होता है, जब लोग उसके साथ खड़े होते हैं तब वो मजबूत होता है। उठे अपने हक के लिए, मैदाने अमल में आए। आपके सामने गौसे आज़म की सीरत है, इमाम आज़म की सीरत है, ऐसी ऐसी
की दुनिया में आने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है। दिलों के अंदर जो जंग लग चुका है उस जंग को मिटाने की जरूरत है। इंशाअल्लाह फिर वो सुबह नवेद चाफजा होगी और फिर हालात आपके हक में होंगे। खुदा के लिए दो चीजों को मजबूती से थामे रखें। एक चीज अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत है। आपस के झगड़ों से खुद को आजाद करने के साथ साथ उम्मत मुस्लिमा के रोशन मुस्तकबिल के लिए सोचना शुरू करिए। नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं मुत्तहिद होंगे तो दुनिया की बहुत सारी कौमें मिट रही हैं, आप भी मिटेंगे और मिट जाएंगे। अगर आपको नहीं मिटना है तो ये तसव्वुर रखना होगा कि हम मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं, आका के गुलाम हैं और हम ये नारा देंगे उम्मत को, मिट जाए मिटते हैं, मिट जाएंगे आगा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मोहब्बत रसूल जिंदाबाद, इत्तेहाद उम्मत पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। नूरिल अनवार सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि अतहार। यानी मुजद्दिद आज़म है, फकीह आज़म है, ये जो कौम की क़यादत करने वाले थे ये मैं वाले नहीं थे। मैं वाले नहीं थे, हमारी कौम को हल्के में न लेना। अरे कौम ने उसी कायम की क़यादत को माना है जो मैं वाले न थे, तू वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आगे सदुल फातिल, फखरुल अमासिल, उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल असातिज़ा, नजर कर गए हुजूर सरकार अली हुसैन शफी जिलानी, वो नजर करता भी परवरदा भी। क्या बात है, एक तू वाले ने नजर डाली। सदुल फातिल, सदुल फातिल, और ये बात मैं नहीं कहता, सदुल फातिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं। जब हुआ उसपे अशरफी का करम, जब हुआ उसपे अशरफी का करम, राज़े वहदत खुले नईमुद्दीन। हाय हाय सुभान अल्लाह, राज़े वहदत खुले नईमुद्दीन, नईमुद्दीन। जब हुआ तुझ पे अशरफी का करम, जब हुआ तुझ पे, जब हुआ अरे जिसके शागिर्दों की तादाद वो सदुल फातिल, वो फखरुल अमासिल, उनके शागिर्दों को देखिए तो आसमाने इल्म
بے شک سبحان اللہ امین شریعت کو بھی میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، ان کی جلوت کو بھی دیکھا، ان کی خلوت کو دیکھا، جو رنگ خلوت میں وہی جلوت میں، آئے آئے جلوت میں وہی خلوت میں، آئے ماشاء اللہ ان کی خلوت بھی جلوت اور ان کی جلوت بھی خلوت، خلوت نما جلوت، جلوت نما خلوت، وہ امین شریعت جہاں سنتوں کی پاسداری، اللہ جہاں شریعت کی پاسداری، بے شک جہاں علم اور صرف علم ہی نہیں تقویٰ، جب علم اور تقویٰ کسی پیکر میں جمع ہوتے ہیں تو وہ امین شریعت بنتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ جب علم اور تقویٰ کسی پیکر محسوس میں جمع ہوتے ہیں تو وہ امین شریعت بنتا ہے۔ آپ سوچو جب مرید کا یہ عالم ہے، آئے بے شک بے شک مرید کے پیر کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ پیر کا عالم کیا ہوگا؟ پیر کا شبیہ غوث جیلانی، آئے آئے اولاد مخدوم سمنانی، بے شک سیاح عرب و عجم، شیخ العرب والعجم، ارے وہ حضور اشرف میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے چہرے کو دیکھ کر امام احمد رضا کی زبان یوں گویا ہوئی، اشرفی ہے خط آئی ہے حسن قبا، اے نظر کر دو پرور رہے سے محبوبہ۔ حضور آپ کا چہرہ تو ایسا ہے کہ اس چہرے میں غوث اعظم کا چہرہ ہے، اس چہرے میں محبوب الہی کا چہرہ ہے، اس چہرے میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اعلیٰ حضرت سیدی علی حسین وہ مرشد لاسانی تھے۔ بے شک اگر جمال غوث الورا دیکھنا ہے تو چہرے اشرفی دیکھو، اگر جمال محبوب الہی دیکھنا ہے تو چہرے اشرفی دیکھو، اور جمال مخدوم سمنانی دیکھنا ہے تو چہرے اشرفی۔ اللہ اللہ بے شک یہ پیر و مرشد، ان کے مرید و خلیفہ امیر شریعت، ان کی آدم بازو اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت چہرہ تھا، دیکھنے والوں نے دیکھا کیا تابناک آنکھیں تھیں، جہاں بھارت کی نہیں تھی بصیرت تھی۔ میں بتاؤں رسول افاضل کسی بارگاہ میں زانوئے حضرت نہ چلے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ رسول افاضل کسی بارگاہ میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، تو کہیں سے کہیں اور چلا گیا کر دیا ہوگا، یہ میرا مزاج ہے، کبھی کبھی تھوڑا لمبا ہوگا۔ اپنے تعلیم خاص کے ساتھ کٹوچا شریف سے اسمبلی میں آئے، ان کا تعلیم کا راستہ بہت خراب تھا، گڈھا یہ تانگے پہ بیٹھے، اکبر پور سے تانگے سے آتے تھے کٹوچا شریف، راستہ اونچا نیچا کچا، تو خالد نے کہا حضور راستہ بہت خراب ہے، نیچا نیچا کچا کچا زمانے میں حضور راستہ بہت خراب ہے، فوراً تنبیہ فرماتے ہیں توبہ کرو، راستہ خراب مت کہو، یہ کہو راستہ حرام ہے، راستہ خراب میں نہیں بولو، راستہ حرام ہے، راستہ کچا ہے، کچا بول، خراب مت بول۔ کیا تربیت کر رہا ہے، کیا اصلاح ہے؟ اگر ارے نادان اگر یہ راستہ خراب ہے تو یہ اچھا کون ہے؟ یہ وہ راستہ ہے جو مجھے میرے پیر تک پہنچاتا ہے، اور میرے پیر کا وہ راستہ ہے جو مخدوم اشرف تک پہنچاتا ہے، اور مخدوم اشرف کا وہ راستہ ہے جو غریب نواز تک پہنچاتا ہے، اور غریب نواز کا وہ راستہ ہے جو غوث اعظم تک پہنچاتا ہے، اور
किसी मैं पर मैं कलाम करता हूँ। देखिए मैंने भी मैं का इस्तेमाल थोड़ी रियायत किसी मैं पर थोड़ा सा मैं कलाम करता हूँ करूँ है सुनने का। अगर आपका सुनने का मूड है तो आप भी सोच लीजिए। रात अपनी है बात उनकी है। जी जी बेशक और आज की रात भैया ऐसा है कि बहुत ठोकर खाते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा। घर से असर की नमाज पढ़ के निकला तो 1.5 घंटा सिर्फ मोहनलाल में 1.5 घंटा मतलब चक्का ही नहीं सकता। ट्रैफिक जाम। मैंने पूछा बजे कहा धनतेरस। मैंने हाफिज अनवर साहब से कहा कि हाफिज साहब तारीख आप रख रहे थे मैंने रखा मैंने लिया उन्होंने लिया मांगा इन्होंने कहा मैंने लिया तो मैंने पूछा पूछेगा ये बात की मेरी मतलब ऐसा है कि लेकिन अब वो धीरे धीरे उतर रही हजरत मंसूर ने कहा अनल हक उनका दावा है अनल हक है किसी ताज बुजुर्ग के आगे की हिम्मत को कहे अनल हक। हजरत मंसूर जिन्होंने कहा अनल हक अनल मैं हक। कुछ लोगों ने समझा कुछ लोगों ने नहीं समझा और जिन्होंने समझा उन्होंने भी थोड़ी सी मुखालफत मुस्तकबिल पर नजर डाली। हजरत मंसूर मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। हजरत मंसूर का जो दावे अनल हक था ये उनका अपना दावा नहीं था। आज इस दावे पर मैं कलाम करूँगा। अनल हक तो हजरत मंसूर ने कहा बिल्कुल सही था। जहां से कहा आप वहां को देखो। जिस वक्त हजरत मंसूर ने अनल हक कहा तो उस वक्त मनोतू का झगड़ा न था। झगड़ा न था सिर्फ तू यानी उन्होंने अपनी मैं को उसकी तू में बना कर दिया था। अपनी मैं न रही तू अपनी मैं को खुदा की तू में बना कर दिया। अब जब उस बनाइयत के मकाम पर पहुंचे तो कहा अनल हक ये सही है कि ज़बान मंसूर की है मगर ये भी सही है कि बात उनकी नहीं है। ये सही है कि कलाम मंसूर का पता ही ज़बान मंसूर की। मौलाना आसी का दो शेर मुझे याद आ गया। वो फरमाते हैं कि सूरे मंसूर अनल हक की गलत निस्बत थी। कोई कह दे कहीं बंदा भी खुदा होता है। सूरे मंसूर अनल हक की गलत निस्बत थी। कोई कह दे कहीं बंदा भी खुदा होता है। और फिर फौरन दूसरा शेर लिखते हैं कि इन्हीं कानों से अनल हक के सुने हैं दावे आदमी इश्क में क्या जानिए क्या होता है। कानों से अनल हक के सुने आदमी इश्क में क्या जानिए क्या होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत सफूरा को बात की जरूरत थी। वो हामिला थी। आग की जरूरत हुई। कलाम की तरफ बातें की तरफ इशारा करता चलूं। हजरत मूसा को दूर से चिंगारी
मुक़द्दस तो मूसा तुम अपने नानाइन को उतार दो, तुम तोआ की मुक़द्दस वादी में हो। आवाज तरफ से आई क्या? इन्नी अल्लाह। कहां से आवाज आई? देर से आवाज आई क्या मैं अल्लाह हूं? अब मुझे सीने पर हाथ रख के जब आपको ईमान वालो, क्या तरफ खुदा था या खुदा है? नहीं है ना। आवाज कहां से आई? शजर से। शजर से। शजर दरख्त, दरख्त नहीं समझे, पेड़। पेड़ को दरख्त, और दरख्त को अरबी में क्या कहते हैं? शजर। शजर से आवाज आई मैं अल्लाह हूं। क्या वो शजर, वो पेड़ खुदा था? फिर क्या था? खुदा नहीं था, खुदा के कलाम का मज़हर था। माशाअल्लाह। वो काबिल मुतलक है, उसने अपने कलाम को जाहिर किया तो दरख्त से आवाज आई। तो दरख्त खुदा ना था, खुदा के कलाम का मज़हर था। खुदा के कलाम का मज़हर था। था। अब मैं जुमला आपको नजर करना चाहता हूँ कि जब वादिये तवा का शजर खुदा के कलाम का मज़हर बन सकता है, जब वादिये तवा का शजर खुदा के कलाम का मज़हर हो सकता है, तो मंसूर जैसा बशर खुदा के कलाम का मज़हर क्यों नहीं? या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई कि अनल हक कौले अनल हक का जुमला दे रहा हूं। मुद्दई ये कौले अनल हक, मुद्दई ये कौले अनल हक मंसूर की रगे गर्दन में था। मुद्दई ये कौले अनल हक मंसूर की रगे गर्दन में था। हैरानी किस बात पर? इसी ख्याल को तो मौलाना रूमी बयान फरमा रहे हैं। मुझसे अल्लाह हुआ घर के हुकूम में अब्दुल्लाह हुआ है ना। जब अब्दुल्लाह अपनी मैं को खुदा की मैं में फना कर देता है, तो अब मैं नहीं अब्दुल्लाह का रहता, सिर्फ तू 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 तू। वो अब्दुल्ला इस शान का होता है, जमीन पर चलता है तो मौला तू तू ही तू, आसमान पे नजर उठाता है तू, गुलशन में देखता है तो तू, फूलों की महक में तू, गुलशन में तू, चमक में तू, सितारों की चमक में तू, सूरज की रोशनी में तू, चांद की चांदनी में तू, जंगलों में तू, पत्थरों में तू, समुंदर में तू, रवानी में तू, तोहियानी में तू, पहाड़ों में तू, कोहसारों में तू, सहराओं में तू, हमारे अंदर तू, हमारे बाहर तू, जमीन पर तू, कब्र में तू, कब्र में तू, जमीन के अंदर तू, अगर कश्ती डूब जाए मौला तू 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 हर जगह तू। जब ये अकीदा रासिख हो जाता है, जब ये अकीदा रासिख हो जाता है, तो वो हसन बसरी होता है, वो बायजीद बुस्तानी होता है, वो जुनैद बगदादी होता है, वो अब्दुल कादिर जीलानी होता है, वो गौसे समदानी होता है, वो अताए रसूल गरीब नवाज होता है, वो तारिक सल्तनत महबूब यज़दानी। अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा बंदा उस मकाम पर अल्लाह ताला अपने फज़ल करम से पहुंचाता है कि मखदूम सिरनानी फरमाते हैं, मुझे मेरे रब के फज़ल करम ने उस मकाम पर इस फकीर अशरफ को पहुंचाया है कि कायनात की सारी वुसअतें सिमट कर मेरे कदमों के नीचे है, और अर्श इलाही मेरे दिल में दिल आज एक लोग नफ्स के गुलाम, तो मेरे
अरे बाबा, कौम के कायद बनने से पहले नफ्स की क़यादत करो। पहले इसको सुना लो। कौम की क़यादत से पहले जो नफ्स है आपके अंदर, हमारे अंदर, इससे कायद बनो। वरना हमने देखा है इस दौर के कायदों को इतना भूल जाते हैं कि आखिर में भूल जाते हैं। चुनाव आया चौथिन्ना, चुनाव गया भूल गए। मेरे दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दुनिया में रहो तो सिर्फ वोट के लिए। नहीं, ये हमारा काम नहीं। तय करो कि हमको दीन पर हर हाल में कायम करना है। चाहे भूखे रहे, प्यासे रहे, नंगे रहे, भूखे रहे, मगर अपने दीन पर कायम करना। जो दिल में वही ज़बान पर, जो ज़बान पर वही दिल में, जो दिल में वही ज़बान पर, जो ज़बान पर वही दिल में। ये नहीं कि दिल में कुछ ज़बान पर कुछ, ये बड़ी बीमारी है। दिल में कुछ ज़बान पर कुछ, हाँ, ज़बान पर वही दिल में, जो दिल में वही ज़बान पर। तो लोग मेरे गुलाम का गुलाम, फिर समझ में बात सबके आ गई। एक बात बताए, ये सारी तकरीरें आप सुनते हैं, सब तकरीर करते हैं, पूरी किताबत का जोर लगाते हैं, तकरीरा बनाते हैं, चले जाते हैं, सलाम होता है, दुआ होता है, नतीजा क्या? नतीजा क्या? दोस्तों, इसीलिए पहले अपनी इस्लाह करो। लोग आते हैं, कौम को मुखातब करके कहते हैं ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा, बिल्कुल सही है। लेकिन थोड़ी देर वक्त निकाल कर आप अपना भी मुहासबा कर लीजिए कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ। इसलिए कि हमारी कौम को तो हीरे का तरीका नहीं मालूम है, मगर हमारी जमात के जो बड़े हैं उनको हीरे शरई आता है, रास्ते निकाल देते। हज़रात, अपना मुहासबा करो। हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू। इसमें सिर्फ कौम नहीं है, हम भी हैं, सब आए। तो इस गेट पे बैठे वो भी हैं, हम भी हैं, आप भी हैं। अपना मुहासबा करो। इससे पहले तुम्हारा हिसाब किताब हो, पहले तुम अपना अपने अंदर छान कर देखो हम क्या हैं। ये नफ्स सबसे खतरनाक चीज, नफ्स है सबसे खतरनाक चीज, वो हमारे अंदर है, सबके अंदर। उस नफ्स को कहते हैं नफ्से अम्मारा। यही नफ्स है जो हमसे झूठ बोलवाता है, गीबत करवाता है, चुगली चुगलखोर बनाता है। मेरी इतने मुंहगिरी करने वाले हैं, ये सब नफ्स के बंदे हैं, नफ्स के बंदे हैं। अल्लाह के बंदे, अल्लाह का बंदा कहने का हक नहीं। आप कहिए कि हम नफ्स के बंदे। जो अल्लाह का कहना न माने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना न माने, वो अल्लाह का बंदा कैसे? वो तो नफ्स का बंदा है। अगर नजात चाहिए तो नफ्स की गुलामी से आजाद होने की कोशिश करो। बड़ा खतरनाक बताए, एक है नजिस और एक है नजासत। कपड़े में अगर नजासत लग जाए, आप उलमा से मसला पूछे तो कहेंगे पानी से धुल दो। पैर में नजासत लग जाए, पानी से धुल दो। जब धुल दोगे तो साफ हो जाएगा, जब साफ हो जाएगा तो पाक हो जाएगा। मगर नजिस, और नजिस में वो भी जो नजसुल ऐन है, नफ्से अम्मारा को सूफियाए किराम फरमाते ये नजसुल ऐन है। इसे कैसे पाक किया जाए? ये नजसुल ऐन है, सूफिया का इरशाद, ये नजसुल ऐन है नफ्से अम्मारा। इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? क्या इसे भी पाक करने की सूरत है?
वाले हैं उन्होंने बताया हाँ इसे भी पाक करने की सूरत है, इससे भी छुटकारे की सूरत है, इससे भी नजात हासिल करने की सूरत है। देखो ये गोबर है ना, नजिस है, अगर इसे पाक करना है उलमा से पूछो मौलाना नसीर अहमद साहब, मौलाना अहमद बाची साहब की जो गोबर है क्या इसे पाक करने की जरूरत है? तो कहेंगे हाँ है। आग लगा दो, आग लगा दो। जब आग लगाओगे तो ये आग में जलेगा, जब जलेगा तो राख हो जाएगा, जब राख हो जाएगा तो पाक हो जाएगा। क्योंकि जलने के बाद अब वो गोबर नहीं रहा, क्योंकि माहियत बदल गई, हकीकत बदल गई। अब जब हकीकत बदल गई तो हुक्म बदल गया। अब उसी राख को जो जल के राख हो गया गोबर, आप उसको उस राख का इस्तेमाल भी करते हैं, राख का इस्तेमाल भी करते हैं। हाय अब अगर इस नजिस को पाक करना चाहते हो तो इसे दुनियावी आग में जला दो, दुनियावी आग में जला दो। और नफ्से अम्मारा जो नजिसुल आइन है, अगर इसे पाक करना चाहते हो तो खौफे खुदा की आग में इसे जला डालो। जब ये जल जाएगा तो राख हो जाएगा, और यही नफ्से अम्मारा जब जल जाएगा तो नफ्से मुतमइन्ना में बदल जाएगा। जब नफ्से मुतमइन्ना में बदल जाएगा तो एलाने रब्बानी होगा, या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी तू मुझसे राजी, मैं तुझसे राजी। नफ्से मुतमइन्ना पलट आपके रब की तरफ, पलट जा आपके रब की तरफ। इस तरह तू मुझसे राजी, तेरा रब तुझसे राजी। तू मेरी जन्नत में दाखिल हो जा, मेरे बंदों में दाखिल हो जा। और खुदा जिसे अपना बंदा कहे, तो नफ्से अम्मारा। अब बात समझ में आई कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी से हुजूर ने क्या फरमाया, ये उस्मान तुम जो चाहो करो, तुम जन्नती हो चुके, जो चाहो करो। इसका मतलब ये न निकालिएगा कि अल्लाह के रसूल ने हज़रत उस्मान गनी को गुनाह की इजाजत दे दी, जो चाहो करो, जो चाहो करो। नहीं, ये कहने से पहले अल्लाह के नबी ने उस्मान गनी के नफ्से अम्मारा को नफ्से मुतमइन्ना जो चाहो करो, जो चाहो करो। बंदे नफ्स बनकर हमको दुनिया में नहीं रहना है, बंदे रब बनकर रहना है। बंदे रब बनने के लिए सबको छोड़ना पड़ेगा। हज़रत गिरामी तो जो ईमान लाए, इस तरह कहा हमारा रब अल्लाह है और उस पर कायम रहे, डटे रहे, जमे रहे। अच्छा ये बताइए, उलमा ने हज़रत मंसूर के खिलाफ हुक्म दिया, सूली पे लटकाए गए, उन्होंने उस पर हुक्म को कबूल भी किया, चूचरा न किया, शरीयत मोहम्मदी का पासो लिहाज। हज़रत मंसूर पर लोगों ने पत्थर मारे, लहूलहान हुए, उन पर उनको एहसास तक न हुआ। मगर जब शेख अबू बकर शिबली ने फूल फेंका तो वो चीख पड़े। लोगों ने कहा कि जब पत्थर मारा गया, आप लहूलहान न हुए तो आप चिल्लाए नहीं, चीखे नहीं। जब अबू बकर शिबली ने फूल फेंका तो आप चीख पड़े। तो हज़रत मंसूर ने क्या जवाब दिया था कि ये पत्थर मारने वाले नादान थे, माशाअल्लाह, ये पत्थर फेंकने वाले नादान थे, मगर जिसने फूल फेंका वो दाना था, वो दाना था, वो जानता था मैं क्या हूँ, मेरा कलाम। मैंने इसमें अंदर झांक कर देखा, तलाश किया, तजस्सुस तफक्कुस जो मेरा अपना एक शौक है, तो मुझे एक बात नजर आई, उसी को बयान करके आगे बढ़ना चाहता हूँ कि हज़रत मंसूर के खिलाफ वसूली पर चाहे तक न किया, उन्होंने इस हुक्म को कबूल क्यों किया?
क्यों कबूल किया? इसलिए ताकि मुस्तकबिल में नकली मंसूरों पर पाबंदी लग जाए। क्या बात है। ताकि मुस्तकबिल में नकली मंसूरों पर पाबंदी लग जाए और कोई अनल हक का दावा ना कर सके। इसका मतलब ये है सुबह कयामत तक अब मंसूर नहीं आने वाला। सुबह मंसूर इन्हीं कानों से अनल हक के सीने है डाले। आदमी इश्क में क्या जाने क्या होगा। जिन्होंने कहा मेरा रब अल्लाह, हुजूर फरमाते ये मेरी उम्मत की सिफत है और इस पर कायम रहेगा। अब क्या है? अब आप देखिए वो तो आगे तक नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, आगे तक पहले मैं इसी पर आ जाऊँ। इस्तिकामत है क्या? तो खलीफा दौर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इस्तिकामत दीन पर कायम रहना, दीन पर कायम रहना। और सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? इस्तिकामत अमल का रिया से पाक होना, ये इस्तिकामत है। अमल का रिया से आप नमाज पढ़ते हैं किसके लिए? बोलो। रोजा रखते हैं किसके लिए? हज किया कि नहीं? किया तो किसके लिए? ज़कात देते हैं तो किसके लिए? ये एहसान तो नहीं करते ना, तो फिर इसमें कमी क्यों करते हो? सही सही ज़कात क्यों नहीं निकालते? एक साहब ने कहा हुजूर जो मेरे घर में है उसकी तो मैं निकाल देता हूँ, जो बैंक में है उसकी नहीं निकालता। मैंने कहा क्यों? कहा वो हमारे पास कहाँ है? वो तो बैंक में है। मैंने कहा वाह, मैंने कहा बैंक में है तुम्हारा ही तो है। कहा तो बैंक में है, बैंक निकाल है, हम हमारे पास कहाँ है? मैंने कहा इसे सारी भारत सोच रहे हो। अरे भाई पैसा आपका है ना, अब तो एटीएम अब तो आपको बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं। ज़कात उस पर भी निकालना है जो आपके बैंक में, और उस माल पे निकालना है जिस माल पर पूरा साल गुजर गया। अब पूरा साल गुजर गया, चाहे वो बैंक में हो या घर में हो या एफडी हो। एफडी 5 साल की अगर आपने की तो जब आपको पूरा मिलेगा तो पूरे 5 साल का काउंट करके हिसाब करके 5 साल की ज़कात निकालनी पड़ेगी। अल्लाह के लिए है ना जी बेशक। फिर आपको दिक्कत क्या है? जब अल्लाह के लिए है ज़कात, अल्लाह के लिए रोजा, अल्लाह के लिए हज, अल्लाह के लिए नमाज, अल्लाह के लिए सब अल्लाह के लिए है ना, सब अल्लाह के लिए। अब अगर आप इसलिए हज करें कि लोग हमें हाजी कहें, इसलिए नमाज पढ़े कि लोग हमें नमाजी समझे, इसलिए रोजा रखें कि लोग हमें रोजेदार, बस ये अमल है किया, उसमें दिया, इसमें रिया दिखावा करके भी ना करना। आपने किसी को 50,000 से मदद की और नियत किए कि पूरा प्रतापगढ़ शहर जान जाए कि मैंने इस बंदे को 50,000 दिया, तो 50,000 देने के बाद भी आपके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि रिया। और अगर आपकी नियत अच्छी थी और दिया कुछ नहीं, जो भी है ही नहीं, तो सवाब मिलेगा। इसलिए सरकार फरमाते हैं नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। मिसाल के तौर पर घर में निकले, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, अब
देखिए मौलाना जा रहे हैं, पूरा बोतल लेके जा रहे हैं। अगर कोई के पास से बोतल है घड़ा होता तो अभी उठा के जाते। अब बोलो इससे इशारा कर दिया, हमने समझ लिया ये कहानी की कहानी ही रही। इसको क्या बोलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में? काली उंगली। अच्छा पता नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर मंसूर साहब इसको काली क्यों बोलते हैं? अच्छा ये ऐसा इशारा है, इससे तो समझ जाते हैं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और अगर कोई काम हुआ और सामने वाले ने कुछ इशारा किया, डन, इसका मतलब है डन, ओके, हजरत चलना है। हजरत ने ये अंगूठा बहुत जबरदस्त है ना, ये अंगूठा, ये उंगली अच्छी अच्छी जगह ले जाती है, अच्छी अच्छी जगह है ना। लेकिन जो कहानी है वो कोने में ले जाती है। आपने नियत कर लिया घर के अंदर, आपकी पॉकेट में 1 रुपया नहीं था, और नियत कर लिया मैं घर से निकलूंगा, अगर कोई मुझे रास्ते में मिला मैं उसे सलाम करूंगा, कोई फकीर मिला तो मैं उसको पैसा दूंगा, अगर रास्ते में कांटा पत्थर है तो उसको हटा दूंगा, कोई मस्जिद के लिए आया तो मैं उसे चंदा दूंगा। ये निकले आप घर से सारी कई नियतें इकट्ठा कर, कोई नहीं मिला, न पत्थर काटा मिला कि आप हटा दें, न कोई फकीर मिला कि आप उसकी मदद करें, न कोई चंदे वाला मिला कि आप उसकी मदद करें, रसीद काटे फाड़े, अब तो फाड़ दें। लेकिन नियत की आपने, तो जितनी नियतें की हर नियत का सवाब